अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। मेरे पास इंग्लिश में है, हिंदी या बांग्ला चाहिए था। तो इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, बांग्ला निकाल सकते हैं क्या? इंग्लिश बंगाली है ना? बंगाली 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 थर्ड कैंटो फर्स्ट चैप्टर। By his piety, Vidura achieved the advantages of pious Kauravas. After leaving Hastinapur, he took shelter of many places of pilgrimage, which are Lord's lotus feet. With a desire to gain a high order of pious life, he traveled to the holy places where thousands of the transcendental forms of the Lord are situated. तो विदुर को जब दुर्योधन बहुत तिरस्कार करते हुए उनको अपने घर से, अपने महल से, राजमहल से निकाल दिया, तो विदुर राजमहल से बिना कोई दुख प्राप्त करते हुए निकल गए। तो विदुर उस समय विचार किया कि अच्छा हुआ कि कौरवों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल गया। अभी हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तीर्थों में भ्रमण करेंगे। तो यहां पर तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा अनुवाद और तात्पर्य बांग्ला में मिल गया, मैं पढ़ रहा हूं। विदुर तार पूर्ण फलेर प्रभावे कौरवদের পূর্ণার্জিত সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পরে কেউ কথা বলবেন না, হ্যাঁ? যারা কাজ করছেন, কাজ कर रहे हैं ना, बिना बात करते हुए काम करिएगा। हाँ, হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর তিনি ভগবানের শ্রী পাদপদ্মস্বরূপ বহু তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। तो इस चैप्टर में वर्णन किया गया है तीर्थ भ्रमण क्यों करना चाहिए और तीर्थ भ्रमण कैसे करना चाहिए। अभी हम लोग कहां पर बैठे हैं? तीर्थ में, जहां पर स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। हजार साल पहले इसी स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। उनके जो चतुर्भुज के साथ वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों ही विष्णु तत्व है। तो अभी जब भगवान जहां पर प्रकट हुए हैं, जो तीर्थ हैं, वहां पर कैसे निवास करना चाहिए और क्यों तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, तो वो इस चैप्टर में विदुर जी अपने जीवन से सिखा रहे हैं। হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পর তিনি ভগবানের শ্রী পাদপদ্ম স্বরূপ বহু তীর্থস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত তীর্থস্থানে ভগবানের সহস্র চিন্ময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। অতি উন্নত স্তরের পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায় তিনি এই সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেছিলেন। তাৎপর্য, নিঃসন্দেহে বিদুর ছিলেন অতি উন্নত স্তরের পুণ্যাত্মা। তা না হলে তিনি কৌরব বংশে জন্মগ্রহণ করতেন না। উচ্চকুলে জন্ম, ধন, বিদ্যা এবং দেহের সৌন্দর্য সবই পূর্বকৃত পুণ্যের ফল। কিন্তু এই সমস্ত পুণ্য ভগবানের
কিন্তু এই সমস্ত পুণ্য ভগবানের কৃপা লাভ করে তার অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বিদুর নিজেকে যথেষ্ট পুণ্যবান নন বলে বিবেচনা করে ভগবানের নিকটবর্তী হওয়ার মহাপুণ্য অর্জন করার জন্য পৃথিবীর সমস্ত তীর্থগুলি পর্যটন করতে মনস্থ করেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন এবং বিদুর তৎক্ষণাৎ সরাসরিভাবে তার কাছে যেতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি, কেননা যথেষ্টভাবে পাপ মুক্ত হতে পারেননি বলে তিনি নিজেকে মনে করেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত না হলে শুদ্ধ ভগবত ভক্ত হওয়া যায় না। বিদুর জানতেন যে কূটনীতি পরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের সঙ্গ করার ফলে তিনি তার পুণ্য হারিয়েছিলেন এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের সাহচর্য লাভ করার উপযুক্ত ছিলেন না। ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, যেষাম তু অন্তগতং পাপাম জননাম পুণ্যকর্মানাম তে দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্তা ভজন্তে মাম দৃঢ়ব্রতা। যারা কংস ও জরাসন্ধের মতো পাপী অসুর, তারা কখনোই শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করতে পারেন না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত ধর্মের অনুশাসন পালন করেন, তারাই কেবল কর্মযোগ ও তারপর জ্ঞানযোগ পন্থায় যুক্ত হতে পারেন এবং তারপর বিশুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ চেতনা উপলব্ধি করতে পারেন। তখন ভগবত চেতনার বিকাশ হয়, তখন মানুষ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ নিতে পারেন। শান মহৎ সেবায়া বিপ্র পুণ্য তীর্থ নিষেবনাথ। এই জীবনেই ভগবানের সঙ্গ লাভ করা যায়। ये क्या प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है? हाँ, बांग्ला ट्रांसलेशन बेटर है हिंदी से। তো আমি মাঝে মাঝে বাংলা বলবো, মাঝে মাঝে হিন্দি বলবো, ঠিক আছে? কারা কারা এখানে আছেন? कितने लोग हैं जो बंगाली नहीं समझ में आता है? कितने लोग हैं बांग्ला नहीं समझ में आता है? 1 2 3 4 5 6 7। इधर कौन है बांग्ला नहीं समझ में आता है? 7 8 लोग हैं, ठीक है? तो सब लोग ध्यान रखिएगा, बाहर में काम चल रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, कोई बात नहीं करेगा। तो यहां पर विदुर जी को जब दुर्योधन ने निकाल दिया था, तब विदुर जी को दुख नहीं लगा था। हाँ, विदुर जी सोच रहे थे, अच्छा हुआ मैं इतने समय से, इतने सालों से कौरवों का नमक खा रहा था। हाँ, और इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करने के सौभाग्य, भगवान की भक्ति के सौभाग्य मेरा खत्म हो चुका था। अच्छा हुआ कि दुर्योधन ने मेरे को निकाल दिया। तो भगवान के माया शक्ति दुर्योधन के लिए महामाया के रूप में कार्य किया और विदुर के लिए योग माया के रूप में काम किया। दुर्योधन ने निकाल दिया, लेकिन विदुर के लिए वो अनुकूल हो गया। समझ रहे हैं? हाँ। अक्रूर को भेज जा, कौन? कंस, पकड़ के लाओ उनको, मार दूंगा उसको, कृष्ण को। तो कंस के लिए महामाया के रूप में काम किया और अक्रूर के लिए योग माया। एक ही माया शक्ति। जब भगवान की शरण में लेते हैं तो योग माया, और भगवान के विमुख रहते तो महामाया। तो विदुर सोचने लगे, अच्छा हुआ कि मैं अभी तीर्थ भ्रमण करूंगा। हाँ,
तो उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरा धाम में उपस्थित थे। तो विदुर स्वयं जाकर भगवान श्री कृष्ण से मिल सकते थे। स्वयं भगवान पृथ्वी पर लीला विलास कर रहे थे द्वारका में, लेकिन फिर भी विदुर भगवान से डायरेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? सीधा सीधी भगवान से मिलने का प्रयास नहीं किया। क्यों? तो माताजी बोलছে দুর্যোধনের সেবা করে নমক খেয়ে বিদুরের পুণ্য সব নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বিদুর তো পুণ্যাত্মা, এখানে বলছে বিদুর হচ্ছে পুণ্যাত্মা, আর পুণ্য না থাকলে কখনো উচ্চকুলে জন্ম হয় না। চারটে জিনিস পুণ্যের ফলে লাভ হয়। কি কি? সৌন্দর্য, শারীরিক সৌন্দর্য, আর কি? ধন সম্পদ, 2 3 উচ্চকুলে জন্ম, আর 4 নম্বর বিদ্যা। জন্ম ঐশ্বর্য শ্রুত শিবির এদো মাদো মদপুমান। তো এই চারটে জিনিস পুণ্যের ফলে লাভ হয়। তো বিদুর তো অনেক পুণ্যবান ছিলেন, তাহলে বিদুর কেন ভগবানের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে গেলেন না? বলছে ধৃতরাষ্ট্রের সাথে কি ছিল? ধৃতরাষ্ট্রের সাথে নাকি বিদুর ব্যবহার খারাপ করেছিল, তাই কাট হয়ে গেছে, मतलब অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল। কি বলেন আপনারা? विदुर पुण्यवान थे, फिर विदुर क्यों भगवान से क्या कहते सीधा सीधी साक्षात नहीं किया? हाँ, কেননা উনি কৌরবদের সঙ্গ করেছিলেন, কৌরবদের সঙ্গভাবে ওনার পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেছে। हाँ, क्या कारण है? वो अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझ रहे थे, मतलब अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे थे। क्यों योग्य नहीं समझ रहे थे? हाँ, तो आप लोग बोलना चाह रहे कि मतलब क्योंकि विदुर का पुण्य था, लेकिन पुण्य खत्म हो गया था दुर्योधन का संग करके, इसलिए वो अयोग्य थे। नहीं तो वो संग कर सकते थे, है ना? यही बोलना चाह रहे हैं ना? यस, আপনারা এটাই বলতে চাইছেন না যে বিদুর কৌরবদের সঙ্গ করে তার পুণ্য ছিল, তাই এখন পুণ্য শেষ হয়ে গেছে, না হলে সে ভগবানের দর্শন করতে পারতো সরাসরি। কি হ্যাঁ কি না? বিদুর का नहीं, দুর্যোধন का। তো দুর্যোধনে যদি নমক না খেত তাহলে কি যে দর্শন করতে যেতে পারতো? দুর্যোধনের নমক না খেলে তাহলে বিদুর ভগবানের দর্শন করতে যেতে পারতো, এটাই বলতে চাইছেন না? কিন্তু আসলে না। এখানে প্রভুপাদ লিখছেন সরাসরি, প্রভুপাদ লিখছেন যে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়, এখানে লিখছেন উচ্চকুলে জন্ম, ধন, বিদ্যা, দেহের সৌন্দর্য সব পূর্বকৃত পুণ্যের ফলে লাভ হয়। কিন্তু এই সমস্ত পুণ্য ভগবানের কৃপা লাভ করে তার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। समझ में आ रहा है? सब लोग सुन रहे हैं? पुण्य से धन और शारीरिक सौंदर्य, विद्या और उच्च कुल में जन्म प्राप्त होता है, लेकिन इस पुण्य के द्वारा आप भगवान के प्रेममयी सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ये पुण्य भौतिक है, इस पुण्य के द्वारा आप भगवान के प्रेममयी सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। एक तरफ से विदुर का पुण्य खत्म हो गया था,
कौरवों का संग लेने के द्वारा। दूसरे ओर वो पुण्य भी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए विदुर तीर्थ में भ्रमण करने का निश्चय किया था। आप में से बहुत लोगों के पास भौतिक धनराशि हो सकता है, शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, और आप लोगों ने पैसा देके ये अयोध्या यात्रा का रजिस्ट्रेशन करके आ गए हैं। हम क्वालिफाइड हैं, पैसा दिया है, रजिस्ट्रेशन किया है, रूम लिया है, अभी हम भगवान का दर्शन करने के लिए योग्य हो गए हैं। हाँ, लेकिन इस अहंकार से, इस भौतिक योग्यता के बल पे हम लोग भगवान की दर्शन, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कलियुग में अलग अलग भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करके दुर्योधन से भी बुरा व्यक्तियों लोगों का संग करते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से दुर्योधन नॉनवेज नहीं खाता था। हाँ, हम में से बहुत लोग नॉनवेज खाए हैं, और जितने लोगों के साथ उठा बैठा करते हैं सब लोग वो सब करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है दुर्योधन, विदुर से, कौरव लोगों से भी बुरा लोगों का संग हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों का पुण्य कहां पर है कि हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए पुण्य प्राप्त करने के लिए, ये पुण्य आध्यात्मिक पुण्य है जो भगवान के साथ, भगवान के संबंध में प्राप्त होता है, भगवान के भक्तों के संबंध में प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति, हाँ, भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? दो प्रकार से, गुरु कृष्ण कृपा है। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की संबंध में जो हमें कृपा या पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य से हम लोग भगवान के प्रेममयी सेवा में नियुक्त हो सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए विदुर, कुछ लोग उधर देख रहे हैं, उधर क्लास शायद उधर स्पीकर उधर बैठे हुए हैं क्या? स्पीकर इधर बैठे तो इधर देखना चाहिए। तो विदुर जी उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की दर्शन मिले, हाँ, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर, हाँ, बिना कुछ चिंता लेकर, हाँ, तीर्थ में भ्रमण करने का निश्चय किया। और केवल वही नहीं, उस तीर्थ में जो भगवान के महान भक्त लोग निवास कर रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए निश्चय किया। हाँ, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, যখন ভগবত চেতনার বিকাশ হয় তখন মানুষ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ নিতে পারে। শান মহৎ সেবায়া বিপ্র পুণ্য তীর্থ নিষেবনাথ। এই জীবনেই भगवानेर संग लाभ है। तो अगर भगवान के धाम में आते हैं, भगवान के तीर्थ में आते हैं, तो हमारा पाप नष्ट हो जाता है, हाँ, और हमें, हाँ, हम लोग पवित्र हो जाते हैं। जब धाम में हम विचरण करते हैं, धाम में लोटपोट करते हैं, धाम की धूली हमारे शरीर में लगता है, जो भगवान के चरण कमल की धूली है, हाँ, तब क्या होता है, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे हृदय,
हमारी इंद्रियां क्या होता है, पवित्र होता है, पाप से मुक्त हो जाता है। और दूसरा बात है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं, महोत सेवा, शान महोत सेवा या विप्रो पुण्य तीर्थ निषेवनात्, जब तक कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते हैं तब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है। भगवान के शुद्ध भक्त लोग जो हैं तीर्थ के समान है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्तेन गदावृता। भगवान के शुद्ध भक्त लोग अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। तो इसलिए जब भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में हम लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त का सानिध्य लेते हैं, तब क्या होता है, पुण्य तीर्थ निषेवनात्, तब भगवान के सानिध्य प्राप्त होता है। तो इसलिए विदुर कौरव का संग, कौरव लोगों ने जब उनको निकाल दिया तब उन्हें तीर्थ भ्रमण करने का निश्चय लिया और उस तीर्थ में जो भगवान के महान भक्तगण निवास करते हैं उनसे श्रवण करने का निश्चय लिया। इस प्रकार विदुर अलग अलग तीर्थ में भ्रमण किया, जिसके बारे में आगे वर्णन किया गया है, कहां कहां पर गए। और वहां पर मैत्रेय ऋषि उद्धव जी का संग या सानिध्य उन्होंने स्वीकार किया और उनसे वो भगवान के बारे में श्रवण किए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान की विशेष कृपा, भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की दर्शन हमें भौतिक पुण्य से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ये पहला पॉइंट है। भगवान के दर्शन, भगवान के कृपा, भगवान के प्रेममयी सेवा कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होता है? ओके, पहला पॉइंट क्या है? तीर्थ भ्रमण करने से, तीर्थ में आने से। तीर्थ में आने से हमारा पाप नष्ट होगा और हमें आध्यात्मिक पुण्य लाभ होगा, जिसके द्वारा हम लोग भगवान की दर्शन करने के योग्य बन सकते हैं। दूसरा योग्यता किस प्रकार प्राप्त होता है? तीर्थ में जाकर हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों से श्रवण करना चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो जब हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की कथा सुनेंगे तो तब क्या होगा? इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, श्रृण्वतां स कथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम। तो सबसे श्रेष्ठ पुण्य किससे कैसे प्राप्त होता है? श्रृण्वतां स कथा कृष्णम। सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होता है भगवान के बारे में श्रवण करने से। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग तीर्थ में आते हैं और इधर उधर उस गली में घूमते रहते हैं, और भगवान के बारे में सुनते नहीं हैं। तो केवल हमारे ये चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं होता है। जब हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, भक्तों से सुनेंगे, शास्त्रों से सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और रामायण, ऐसे दिव्य ग्रंथों से सुनेंगे और इस शास्त्रों में जो भगवान के प्रेममयी लीला और भगवान के साथ उनके शुद्ध भक्त का आदान प्रदान, उसके बारे में सुनेंगे, तब क्या होगा? हमारे हृदय में प्रेम की संचार होगी। समझ में आ रहा है? पीछे भक्त लोग सुन रहे हैं? तो इस पूरे यात्रा में हम लोग शिल प्रभुपाद जी
जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया है, जिन्होंने पूरे पृथ्वी को धाम बनाया है। जहां जहां पर प्रभुपाद जी गए वहां वहां पर राधा कृष्ण के मंदिर आ गया, वहां पर धाम आ गया। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं तीर्थ के समान हैं, जहां पर जाते हैं वहां पर मंदिर प्रकट हो जाता है, वहां पर भक्त लोग पाप छोड़कर हरिनाम करने लगते हैं, धोती पहनने लगते हैं, तिलक करने लगते हैं, भगवान के नाम जपने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं ये तीर्थ के समान है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी शांत स्तन गदावृता। अगर प्रभुपाद जी के हृदय में भगवत प्रेम नहीं होता तो कैसे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश जाके जो सबसे गिरे हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण के भक्त बना देते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य और पूर्वातन आचार्यगण और जिन महान महान भक्तों के लीला श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, भगवत गीता में आया है, ऐसे भक्तों के बारे में और श्रील प्रभुपाद जी के जो किताबों के द्वारा उनके आश्रय में हम लोग श्रवण करेंगे। इसको छोड़ के हमने यहाँ पर जो इस्कॉन अयोध्या के जो अध्यक्ष हैं हिज ग्रेस षडभुज गौर प्रभु, उनको भी हमने निमंत्रण किया है और आशा करते काल प्रभु जी आएंगे तो उनसे भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रह के जिन्होंने हमें इस धाम में आने का सौभाग्य प्रदान किया है। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किए होते, क्या हम लोग आज इधर बैठे हुए होते? तो धाम का दरवाजा कौन खोला? देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ही बचपन से भगवान राम जी को जानते हैं, लेकिन फिर भी कभी अयोध्या नहीं आए थे। तो कौन लाया? तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग गुरु के आश्रय से, आचार्य गणों के आश्रय से हम लोग धाम यात्रा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि कैसे हमें जो हम लोग इस 4 दिन हम लोग इस अयोध्या धाम में आए हैं, इस धाम का दर्शन और इस धाम में किस प्रकार हमें निवास करना चाहिए। तो आप लोग इसको आपके पास भागवतम होगा तो आप लोग पढ़ सकते, नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। वेदावेश से भागवतम 3 स्कंद 1 अध्याय श्लोक संख्या 17-18 नंबर श्लोक आप लोग पढ़िएगा तात्पर्य के साथ। उसमें और भी लिखा गया है। सर्वत्र प्रकाश तारा तार भक्त सुख दीते जगते अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। भगवान এইভাবে নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রকাশ করেছেন কেবল তার ভক্তদের আনন্দ দান করার জন্য, সাধারণ মানুষদের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্ম স্থাপন করার জন্য। দেখুন এখানে লেখা আছে তিনি অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা আদি বিভিন্ন তীর্থস্থানে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করতে করতে একাকী ভ্রমণ করেছিলেন। বিদুর অযোধ্যায় এসেছিলেন। হরি বল। তাই বিদুর শিখাচ্ছেন কি করে তীর্থ ভ্রমণ করতে হয়। তিনি একাকী ভ্রমণ করছিলেন। কিভাবে ভ্রমণ করছিলেন? কৃষ্ণের স্মরণ করতে করতে। এরকম নয় আমি বলছি না, ঠিক আছে। পুণ্যময় ও নিষ্কলুষ উপবন, পর্বত, কুঞ্জ, নদী, সরোবর এবং যে সমস্ত স্থানে পুণ্যস্থানে ভগবান অনন্তের বিগ্রহ সমূহ মন্দির অলঙ্কিত করে বিরাজমান, সেই সমস্ত স্থানে তিনি বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি পর্যটন করেছিলেন। তো তিনি নদী
আমরা সরজু নদী যাব, পর্বত, উপবন তো আমরা নন্দীগ্রাম, সেখানে ভরতজি নিবাস করেছেন, সেখানে আমরা যাব, এবং মন্দির যেখানে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বিরাজ করছেন, এবং কনক ভবন, হনুমানগড়ি, এই সমস্ত জায়গা আমরা দর্শন করব। তো এবং সেখানে যেখানে বিগ্রহ অবস্থান করছে, শিব বিগ্রহ অবস্থান করছে, তো সেই সমস্ত স্থানে বিদুর বিচরণ করেছিলেন। তো আমরাও বিদুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীমদ্ ভাগবতমের নির্দেশ অনুসারে এবং ভগবানের কথা শ্রবণ করতে করতে আমরা এই ধামে বিভিন্ন স্থান আমরা দর্শন করার চেষ্টা করব। অবশ্যই কলিযুগে বিভিন্ন তীর্থস্থানে মায়ারও বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে। विभिन्न स्थाने बहुत सारे स्थान पर अलग अलग प्रकार के क्या कहते हैं, शास्त्र विरोधी कार्यकलाप, पापमय कार्यकलाप, किसी जगह में शायद लोग नॉनवेज खा रहे होंगे, किसी जगह में लोग नशा कर रहे होंगे, तो किसी जगह में लोग अवैध स्त्री गमन कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे स्थान या परिवेश होगा। तो इसी सभी स्थानों से आप सभी लोग सावधान रहिएगा। तो इसलिए जब तक आप लोग भक्तों के साथ में रहेंगे, एक साथ जो कार्यक्रम दिया गया है, जो शेड्यूल बताया गया है, जब तक आप लोग फॉलो करेंगे तब तक क्या होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो इधर उधर चले जाएंगे तो क्या होगा, माया में ग्रसित हो जाएंगे। तो इसलिए जो कार्यक्रम दिया गया है उसको सब लोग फॉलो करिएगा। और इस प्रकार इस धाम में निवास करने का, और विशेष करके ये जो 16 राउंडर्स कैंप, जो विशेष करके जो 16 माला जप कर रहे हैं भक्त लोग, इन भक्तों के लिए आयोजित किया गया है, जो साल में एक बार होता है। तो इसका पूरी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। प्रसाद आ गया? नित्य धर्म प्रभु प्रसादम इंचार्ज हैं, प्रसादम, आप लोग थोड़ा सा प्लान कर लीजिए, 5 मिनट। तो इस 16 राउंडर कैंप जो है या यात्रा है, इसमें से ज्यादातर लोग इस 16 माला जप कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो 16 माला अभी भी नहीं कर रहे होंगे, तो लेकिन ज्यादातर लोग 16 माला कर रहे हैं। कितने लोग 16 माला कर रहे हैं, हाथ उठाइए। ओके, तो कुछ लोग हैं जो फैमिली मेंबर रिलेटिव्स हैं, आप लोग आए हैं उनके साथ, तो आप सबको भी हम लोग स्वागत करते हैं इस 16 माला करने वाले लोगों के यात्रा में। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से बात हो रहा था। एक भक्त ने आके श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि श्रील प्रभुपाद, एक भक्त किताब बांटने के लिए गया था और वो किताब बांट रहे थे, तो उनको पूछा, जो किताब ले रहे थे उनको पूछा कि इस किताब में क्या है। तो वो भक्त ने कहा कि ये हमें पता नहीं है, आप पढ़ लीजिए, किताब लीजिए। तो जो किताब लिया उन्होंने पूछा कि इस किताब में क्या है, बोला हमें पता नहीं है कि इस किताब में क्या है, आप लीजिए किताब। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि उनके भक्त लोग किताब बांट रहे हैं लेकिन किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बार प्रभुपाद के पास एक कॉम्प्लेन आया था कि बहुत सारे भक्त लोग भक्ति छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत
भक्त लोग जो हैं, बहुत सारे भक्त लोग जो हैं, या कुछ कुछ भक्त लोग जो हैं जो 4 नियम को तोड़ रहे हैं। तो तब प्रभुपाद जी बहुत गंभीर हुए। तब उन्होंने एक मीटिंग बुलाया, अलग अलग भक्त लोग, लीडर्स को बुलाए, जीबीसी लोगों को बुलाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें पता है आपने बहुत सारा दूध इकट्ठा किया है, बहुत सारा दूध समझते ना, गाय का दूध इकट्ठा किया है, लेकिन अभी उनको, उस दूध को उबालना जरूरी है। अगर हम लोग वो दूध नहीं उबालेंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद दूध पानी पानी हो जाएगा। तब दूध और पानी में कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा वो है क्या, इतना तक आ जाना चाहिए, उधर क्यों, पूरा कर दो ना, है ना कि कार्टन। बहुत बार क्या होता है, दूध को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, और फिर क्या होता है, उसमें दूध का कोई स्वाद नहीं रहता है और दूध का जो गुण है वो भी नहीं बचता है। तो नाम है दूध, लेकिन पी रहे हैं पानी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि बहुत सारे दूध इकट्ठा हो गया है, अभी उबालने में ध्यान लगाओ, नहीं तो जितना भक्त लोग, मतलब बहुत भक्त लोग आ गए हैं, अभी क्या करो, इनको और ट्रेनिंग दो। समझ में आ रहा है? और बहुत भक्त लोग आ गए हैं, अभी इनका देख रेख करो, इनका ट्रेनिंग दो, इनका ख्याल रखो कि ये लोग भक्ति में और सीरियस बन जाए, ये लोग भक्ति में और आगे बढ़ जाए। नहीं तो क्या होगा, जैसे दूध पानी हो गया, वैसे ही बहुत सारे भक्त लोग भक्ति छोड़ के जाने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 16 राउंडर्स जो कैंप जो है, जो 16 माला जप कर रहे हैं, इन कैंप या इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं वो भक्ति में और गहराई में जाए, वो भक्ति में और दृढ़ बने, भक्ति में और आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम में से बहुत लोग भक्ति में आए हैं और भक्ति छोड़ के भी चले भी जाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत लोग, हम लोग भक्ति में आए हैं, शायद भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग 4 नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए शायद हम लोग बाहर से भक्त बन रहे हैं, लेकिन भीतर में अभी बहुत कच्चा है। तो इसलिए भक्ति को और गाढ़ा करना, जैसे दूध को उबालने से क्या होता है, और गाढ़ा होता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग सत्संग करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, और हम लोग कुछ आध्यात्मिक शिक्षा, ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तब क्या होता है, हम लोग भक्ति में और गहराई में प्रवेश करते हैं, भक्ति में और दृढ़ होता है, और हमें समझ में आता है कैसे भक्ति करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, और कैसे हम लोग भक्ति में बने रहे पूरे जीवन। समझ में आ रहा है? কিভাবে আমরা পুরো জীবন আমরা ভক্তিতে টিকে থাকব এবং আমরা খুব নিষ্ঠা সহকারে সারা জীবন যে যেই আশ্রমেই রয়েছে সেই আশ্রমে থেকে তার কর্তব্য কর্ম করার সাথে সাথে সে খুব নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের ভক্তি করতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তো তাই এই 16 মালা জপ করছে যে সমস্ত ভক্তরা, বিশেষ করে আপনারা ইতিমধ্যে 1 বছর 2 বছর ভক্তিতে জুড়ে আছেন, তো
তো তাই ইতিমধ্যে আপনারা কিছুটা সিনসিয়ারিটি দেখিয়েছেন, ইতিমধ্যেই আপনারা কিছুটা নিষ্ঠা বা আপনারা ভক্তি জীবনের প্রতি, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি বা কৃষ্ণের প্রতি কিছুটা কমিটমেন্ট আপনারা দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, তাই প্রভুপাদ একজন আচার্য হিসাবে যারা কৃষ্ণের প্রতি এরকম কমিটমেন্ট দেখিয়েছেন তাদেরকে যত্ন নিতে চাইছেন। বুঝতে পারছেন বাংলা সবাই? যারা অনেকে ঘুমাচ্ছে দেখছি। তাই প্রভুপাদ একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে, আদর্শ গুরু হিসাবে যারা এই কৃষ্ণের प्रति कमिटमेंट देखिएছেন, हाँ कृष्ण भक्ति में थोड़ा कमिटमेंट दिखाया, कुछ आगे बढ़े हैं। आप में से बहुत से लोग दीक्षित भी हैं। बहुत बार देखा जाता है कि दीक्षा लेने के पहले लोगों का बहुत उत्साह रहता है और फिर दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे उनका उत्साह खत्म हो जा रहा है और सत्संग में नहीं आ रहा है और क्लास में नहीं आ रहा है और फिर कुछ समय के बाद ब्लूप मतलब पानी में डूब लगाया और दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो माया बहुत शक्तिशाली है और भक्ति केवल ज्ञान के स्तर पर नहीं है, भक्ति हमें जीवन में उतारना पड़ता है, আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। আর যত আমরা প্রয়োগ করব তত কি হবে, আমাদের হৃদয়ের যে অনর্থ আছে সেগুলো নষ্ট হবে এবং আমরা ভক্তি রস আস্বাদন করব। বোঝা যাচ্ছে? सबको समझ में आ रहा है? তো এই জন্য এই 16 মালা যে জপ করছে ভক্তদের, তাদের এই যে যাত্রা, অযোধ্যা যাত্রা, এটা শুধুমাত্র ট্যুর নয়, শুধুমাত্র আমরা ঘোরার জন্য আসিনি, আমরা এখানে আরো ভক্তিতে দৃঢ় হওয়ার জন্য এসেছি, আরো আমরা ভক্তির গভীরে যাওয়ার জন্য এসেছি। আমরা কিছুটা, আমরা প্রভুপাদের কৃপায়, ভক্তদের কৃপায়, ভগবানের কৃপায় এবং আমরা কিছুটা ভক্তিতে আমরা এগিয়ে গেছি। এখন আমরা কি আরো এগিয়ে যাব না পিছিয়ে যাব? আমরা কি আরো এগিয়ে যাব না পিছিয়ে যাব? আরো এগোতে চান না পিছিয়ে যেতে চান? কি আপনাদের কি মতামত? क्या मतामत है कि आप लोग भक्ति में कुछ साल से जुड़े हुए हैं, आप लोग कुछ प्रगति किया है? बहुत लोग 16 माला जप कर रहे, 4 नियम पालन, कुछ लोगों का दीक्षा भी हो गया, अभी आप लोग और आगे जाना चाहते हैं ना? पीछे बस हो गया, जितना हो गया हो गया, अभी खाओ ब्रिटानिया 50-50, क्या विचार है आप लोगों का? ना जहां पर रहे वहां पर ही रहना चाहते हैं, ब्रेक लगा के बस अभी वेट करो, ऐसा करना चाहते हैं ना? और आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या विचार है? कौन कौन आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में कभी एक जगह में नहीं रह पाएंगे, अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे जरूर जाएंगे। जैसे मोबाइल फोन ऊपर नहीं जाएगा तो उसी प्रकार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, अगर आप आध्यात्मिक जीवन में ऊपर नहीं जाएंगे, माया आपको खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भक्ति में रुकने का कोई, क्या कहते हैं, कोई विचार नहीं है, आगे जाने के लिए प्रयास करो। बेस्ट वे टू डिफेंस इज अटैक, सबसे अच्छा सुरक्षा है आक्रमण करो। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहो और वही आनंद प्राप्त करने का तरीका है और वही भगवत धाम जाने का तरीका है। अगर आपको इस भौतिक संसार में सुखी रहना है तो भक्ति करना है और भगवत धाम जाना है तो भक्ति करना है। भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम भी नहीं जाएंगे और इस भौतिक संसार में भी सुखी नहीं रहेंगे। तो इसलिए भक्ति करना सीखना पड़ेगा और भक्ति केवल ऊपर ऊपर से करने से नहीं होगा, हमें एक सच्चे भक्त बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए सच्चे भक्तों का लीला, सच्चे भक्तों का गुण श्रीमद् भागवतम में
हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ टॉपिक हम लोग लेंगे, कुछ रामचंद्र की लीला हम लोग श्रवण करेंगे, वो एक पार्ट रहेगा इस यात्रा में, और कुछ पार्ट रहेगा ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ, फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग कि एक अच्छे भक्त का मूड क्या होना चाहिए, अच्छे भक्त का गुण क्या होना चाहिए, और भक्ति में अलग अलग कठिनाई का सामना कैसे करें। आप 16 माला जप कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप शुद्ध भक्त बन गए हैं। दीक्षा हो गया इसका मतलब नहीं कि आप अभी भक्ति चालू हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल हुआ है। हाँ? अभी और आपको आगे जाना है। अभी इस यात्रा में अलग अलग प्रकार के कठिनाई का सामना, माया का प्रकोप या अलग अलग प्रकार की समस्या उपस्थित हो सकता है। उस समस्या का सामना कैसे करें, उसके ऊपर हम लोग एक सेशन लेंगे। आप बहुत सुंदर भागवतम से, व्यासदेव जी के जीवन से, हाँ, हम लोग चर्चा करें कि आप लोग खुद एक क्या कहते, मैच्योर भक्त बने कि कठिनाई आए तो कैसे उसका समाधान करना हो। ऐसे नहीं कठिनाई आया माया में फंस गया। इसका मतलब कि आपने जो फिलोसॉफी पढ़ा है, सुना है, वो कोई काम आया नहीं। तो इसलिए केवल हम लोग वो क्या कहते, तोता पाखी जैसा भक्त बनने से नहीं होगा। हाँ, ये शिकारी आया था, ठीक है, शिकारी आया और पक्षी को सिखाएगा। क्या क्या वो स्टोरी? हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं। हाँ, लेकिन क्या हुआ? हाँ, शिकारी आया, उसको बोला शिकारी आएगा, फिर जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हाँ, बोल के गया, लेकिन क्या हुआ? शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना गया, फंस गया, खा लिया दाना। বুঝতে পারছেন আপনারা কি বলতে চাইছি? তাই আমাদেরকে একটা ভালো ভক্ত হতে হবে। আমাদের সামনে এত সুন্দর উদাহরণ রয়েছে, শিল প্রভুপাদ, গুরু মহারাজ, এত জ্বলন্ত চোখ, মানে চোখের সামনে উদাহরণ। তাই গুরু মহারাজ এত কষ্ট করছেন। আপনাদের মধ্যে বেশিরভাগ ভক্তরাই গুরু মহারাজের আশ্রিত বা দীক্ষিত, বা উনি শিক্ষাগুরু আমাদের সবার। তা উনি চাইছেন আমাদেরকে ভগবত ধাম নিয়ে যেতে, উনি চাইছেন আমাদেরকে ভালো ভক্ত করতে। তাই গুরু মহারাজের সেবক হিসাবে আমি নিজের কল্যাণের জন্য এবং গুরু মহারাজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি চেষ্টা করছি কিছুটা। গুরু মহারাজই করছেন এটা গুরু মহারাজের হাতের এক ছোট একটু যন্ত্র হিসাবে আমি চেষ্টা করছি গুরু মহারাজ যেটা চাইছেন সেটা আমাদের ভক্তদের মধ্যে সেটা কি করে বলে, সেটাকে বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করতে। তো গুরু মহারাজ চাইছেন যে আমরা ভালো ভক্ত হই। গুরু মহারাজ যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, বা উনি বলছেন আমি ভগবত ধামে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু তোমাদের আমাকে ফলো করতে হবে। গুরু মহারাজ বলছেন কিভাবে আমরা শ্রদ্ধা থেকে প্রেম অবধি যেতে পারি। গুরু মহারাজ চাইছেন যাদের দীক্ষা হয়নি তারা দীক্ষা নিতে। গুরু মহারাজ চাইছেন যারা প্রথম দীক্ষা হয়ে গেছে তারা যেন দ্বিতীয় দীক্ষা নেয়। তো তাই আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদেরকে আরো এগিয়ে যেতে হবে। তাই এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের গুরু মহারাজ বলছেন যে ভক্তি মানে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আমরা যখন ভক্তি করছি তখন কম বেশি সমস্যা বা বাধা এই জড়জগতে থাকার কারণে বা আমাদের হৃদয়ে বিভিন্ন অনর্থের কারণে থাকবে, কিন্তু সেগুলোর সাথে কি করে ডিল করতে হয়, কিভাবে তাকে ওভারকাম করতে হয়, হ্যাঁ, তো সেই সম্পর্কে আমরা কিছু টপিক একটা টপিক আমরা একদিন আলোচনা করব। আর একটা টপিক আমরা একজন ভক্তের যে ভগবানের প্রতি যে ডেডিকেশন, হ্যাঁ, যে একজন ভক্ত ভগবান এবং তার গুরুর প্রতি যে ডেডিকেশন, কিভাবে তার সমর্পণ থাকা উচিত,
সেই সম্পর্কে আমরা একটা টপিক আলোচনা করব, কিভাবে আমরা ভগবানের প্রতি আমাদের সমর্পণকে আরো बढ़ाते पारी, भगवान के प्रति हमारा समर्पण डेडिकेशन कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, और बाकी सारा लेक्चर जो है हम लोग रामचंद्र के ऊपर आधार करके हम लोग कुछ सुनेंगे और दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है 2 चीज, एक है हम लोगों का और आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें आध्यात्मिक ट्रेनिंग प्राप्त करना है, वो एक एस्पेक्ट है इस यात्रा का। दूसरा है हमें कैसे धाम यात्रा करना चाहिए, हाँ, जिसके बारे में हम लोग विदुर से श्रवण किया, किस प्रकार तीर्थ में भ्रमण करने से हमारा सारा पाप नष्ट होता है, भगवान की कृपा पुण्य प्राप्त होता है, और दूसरा तीर्थ में भ्रमण कैसे करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके और श्रवण करके, हाँ, तो और भगवान की लीला स्थलियों का, शिव विग्रहों का दर्शन करके। तो काल का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। कल अगर आप लोग सब लोग टाइम पे आ जाते हैं, अभी प्रसादम टीम कहां है सर? प्रसादम टीम रेडी कर, चालू करिए। इधर प्रसाद होगा, हाथ यहां पर धो सकते हैं, और देखिए रूम में भी धो सकते हैं आप हाथ, ठीक है। इधर डस्टबिन है, डस्टबिन मांगिए, डस्टबिन मांगिए एक। प्रसादम टीम जो है 3-4 लोग चले जाइए। तो